Hello everyone, I'm Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 13. The chapter name is Sound. Today our topic is amplitude, time period and frequency of a vibration. इस टॉपिक पर हमने प्रीवियस क्लास में भी कुछ समझा था. इन टुडे क्लास हम इसके बारे में समझेंगे एक वीडियो के थ्रू, जिसमें आपकी जो टर्म्स हैं वो और इजीली क्लियर हो जाएंगे कि इनको क्या कहते हैं और क्या चीज को हम टाइम पीरियड बोल रहे हैं, किस चीज को हम एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं. क्लियर है? तो फर्स्ट आप सब ये वीडियो देखो, देन आफ्टर वी स्टार्टेड क्लास. Access to our 100 of conceptual lectures for free. Firstly, let me teach you that what is amplitude. Well, consider the sound waves produced by the source. We know from the previous lecture that during wave motion, particles oscillate about their mean position or equilibrium position to produce sound waves. Now the maximum displacement of the particles either above or below from the mean position is called amplitude. Or simply remember that amplitude is the maximum height above or below from the mean or equilibrium position. Usually, amplitude is denoted by x naught. The SI unit of amplitude is meter. Now, how can we calculate or measure the amplitude of any wave? Well, consider these two waves. Now, I should measure the distance or length of this peak point from the mean position using a ruler or any measuring device. For example, when I measured the length of this peak point from the mean position, suppose it was 0.005 meter. So the amplitude of this wavelength is x is equal to 0.005 meter. Similarly, in this wave, to find its amplitude, we measure the length of this peak point from the mean position. Let's suppose that the length of this peak point from the mean position is 0.1 meter. So the amplitude of this wave is x is equal to 0.1 meter. Thus we can also state that the amplitude of this wave is smaller than the amplitude of this wave. Now what is wavelength? Well, consider the motion of these two waves. We know from the previous lecture that transverse waves travel in consecutive or successive crest and trough, while longitudinal waves travel in successive compression and rarefaction. In case of transverse waves, the length of successive crest and trough is called its wavelength, while in case of longitudinal waves, the length of successive compression and rarefaction is called its wavelength. Wavelength is denoted by the Greek letter lambda. Its SI unit is meter. We know that this region is crust and this region is trough. So the length of one crust and one trough is wavelength or lambda. Let's suppose that its wavelength lambda is equal to 0.01 meter. We also know that this region is compression and this region is rarefaction. So the length of one compression and one rarefaction is wavelength or lambda. Let's suppose that its wavelength lambda is equal to 0.002 meter. Thus remember that wavelength is the length of successive crust and trough, or it is the length of successive compression and rarefaction. Now what is time period? To understand the concept of time period, you must understand the concept of wave cycle. Let's consider the motion of these two waves. In case of transverse waves,
one crust and one trough form one wave cycle or one oscillation. While in the case of longitudinal waves, one compression and one rarefaction form one wave cycle or one oscillation. Now, how many wave cycles or oscillations are there in transverse waves? And how many wave cycles or oscillations are there in longitudinal waves? Well, this crust and trough make one wave cycle. This crust and trough make another wave cycle, and this crust and trough also make another wave cycle. So there are three wave cycles or three oscillations in this transverse wave motion. Here, this compression and rarefaction make one wave cycle, and this compression and rarefaction make another wave cycle. So there are two wave cycles or two oscillations in this longitudinal wave motion. Now listen carefully. Time period is defined as time taken by the oscillating body to complete one wave cycle or one oscillation. Let me repeat it. Time taken by oscillating body to complete one wave cycle or one oscillation is called time period. Time period is denoted by capital T and its SI unit is second. For example, if this wave completes its one oscillation or one wave cycle in 2 seconds, then its time period is T is equal to 2 seconds. If this wave complete one oscillation or one wave cycle in 1 second, then its time period is T is equal to 1 second. Thus remember that time period is the time taken by oscillating body to complete one cycle. Finally, let me teach you that what is frequency. Well, consider the motion of these three waves. Let in 1 second, this wave completes 3 wave cycles or 3 oscillations. This wave in 1 second completes 4 wave cycles or 4 oscillations, while this wave in 1 second completes 6 oscillations or 6 wave cycles. We define frequency as number of wave cycles or number of oscillations completed in 1 second. Let me repeat it. Number of wave cycles or number of oscillations completed in 1 second. Frequency is denoted by small f. The SI unit of frequency is hertz. Thus, the frequency of this wave motion is 3 hertz because it completes 3 oscillations in 1 second. The frequency of this wave is 4 hertz because it completes 4 oscillations in 1 second. And the frequency of this wave is 6 hertz because it completes 6 oscillations in 1 second. Also remember that frequency is equal to the reciprocal of time period. F is equal to 1 upon T. Thus frequency is the number of wave cycles or oscillations completed per second or 1 second. This was all about amplitude, wavelength, time period and frequency. Yes, I think all of you understand this video. आप सबने वीडियो को पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा. Now let's start new topic, loudness and pitch. लाउडनेस और पिच को समझने से पहले जस्ट हम बिफोर पैराग्राफ को देखते हैं जो हमने कल पढ़ा था. हमने क्या करा था कि कोई एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी साउंड. किसी भी साउंड के लिए 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी. उसके बेसिस पे हम अलग अलग साउंड सुनते हैं, हमें पता पड़ता है कि ये साउंड किस पर्सन की है, ये साउंड गेट की है, ये बेल की है, ट्रेन की है, स्कूटर की है. तो हम जो भी साउंड को डिफरेंशिएट करते हैं वो अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे करते हैं. तो इसी के बेसिस पे हमारा फर्स्ट पॉइंट आ रहा है एक्टिविटी
13.11, ठीक है। 13.11 में देखिए आप देख पा रहे होंगे कि एक्टिविटी 13 पॉइंट में कि टेक अ मेटेलिक टम्बलर, हमने क्या लिया, मेटेलिक टम्बलर ले लिया, मेटेलिक टम्बलर लिया, उसके बाद में स्ट्राइक किया उसको टेबल स्पून से, यहाँ पर इसके ब्रिम वाली जगह पर हमने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर लिया है उसको, ठीक है। अब इस ब्रिम वाली जगह से जैसे ही हम स्ट्राइक करते हैं, आप साथ में देख रहे होंगे कि एक पतले से थ्रेड से एक व्हाइट कलर की बॉल से दिखाई दे रही है। ये बॉल क्या है बेटा, थर्माकोल होता है ना, उसकी बॉल्स आती है, बैलून में फिल करने के लिए भी आती है, ये वो बॉल है, ठीक है। तो वो आपको पता पड़ता होगा कि कितनी लाइट इन वेट होती है, तो उसको थ्रेड की हेल्प से हम इस तरीके से हैंग कर देंगे और इस तरफ स्पून की हेल्प से यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे। एक बार हल्के से स्ट्राइक करेंगे, एक बार जोर से स्ट्राइक करेंगे। तो जब हम धीरे से स्ट्राइक करते हैं तो हमें पता है कि वाइब्रेशंस भी क्या होंगे, स्लो होंगे, और जब हम जोर से स्ट्राइक करेंगे तो वाइब्रेशन क्या होंगे, तेज। तो जब धीरे से वाइब्रेट करते हैं तो ये थर्माकोल की जो बॉल है यहाँ से हल्की सी यहाँ दूरी तक चले जाती है, और हम जब जोर से स्ट्राइक करते हैं तो थर्माकोल की बॉल थोड़ा और आगे तक जाती है। Hear the sound produced. अब हम उस पे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। Now bang the spoon on the tumbler and hear the sound produce again. अब वापस से उसको टम्बलर पे हम स्ट्राइक करेंगे और उसकी साउंड जो प्रोड्यूस हुई है उसको सुनेंगे। Is the sound louder when the tumbler is struck hard? जब हमने उसको जोर से मारा तो अब टम्बलर में से आवाज कैसी आ रही है, बहुत लाउड नॉइज आ रही है उसमें से, ठीक है। तो नाउ सस्पेंड अ स्मॉल थर्माकोल बॉल टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर, वाइब्रेट द टम्बलर एंड स्ट्राइक इट। अब उसको बिल्कुल अपन ने टच कर दिया, स्ट्राइक किया, तो सो हाउ फार द बॉल इज डिस्प्लेस्ड है, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो जो थर्माकोल की बॉल है किसमें दूरी तक जाती है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज मेजर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर। अब वो जो थर्माकोल की बॉल है वाइब्रेशन के कारण जितनी आगे तक जाती है वो किस चीज को शो करती है बेटा, एम्पलीट्यूड को शो करती है, ठीक है, उस वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को शो करती है। नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली। अब उस टम्बलर को बिल्कुल जेंटली एंड देन लिटिल हार्डर, थोड़ा सा जोर से, पहले वाले के कंपैरिजन में जोर से स्ट्राइक करते हैं। तो कंपेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, दोनों का कंपैरिजन करेंगे वाइब्रेशंस का, एम्पलीट्यूड का। सो द टम्बलर इन टू केस, इन सच केस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। कौन से केस में एम्पलीट्यूड लार्जर है, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा हार्डर स्ट्राइक किया, बहुत तेज से स्ट्राइक किया, उसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो जो लाउडनेस है किसी भी साउंड की वो प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। किसकी लाउडनेस जो होती है वो साउंड के प्रोपोर्शनल कैसे होती है, स्क्वायर्स में होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम समझते हैं, अगर किसी भी चीज का एम्पलीट्यूड जो है हम अगर डबल कर दें तो लाउडनेस उसकी कितनी हो जाएगी बेटा, कितने इंटू बढ़ जाएगी, 4 बढ़ जाएगी। अब ये ऐसा कैसे हुआ, देखिए एक जगह की एम्पलीट्यूड अपन ने, ये एम्पलीट्यूड है, सपोज करते हैं ये एम्पलीट्यूड पहले सिर्फ इतना था, 1 सेंटीमीटर था, ठीक है, सॉरी 1 था, ठीक है, डिस्टेंस अपन मीटर में था, 1 मीटर था। तो अब ये 1 सेंटीमीटर था और अब ये 2 सेंटीमीटर हमने इसको कर दिया है, यहाँ से यहाँ तक अपन ने कर दिया, ठीक है। तो वाइब्रेशंस में या लाउडनेस में क्या बढ़ेगा बेटा, अगर यहाँ की चीज बढ़ेगी तो इधर की भी बढ़ेगी, ठीक है। तो हमने इसको 2 कर देंगे तो 2 1 2 एंड 3 एंड 4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, लाउडनेस जो होगी 4 बार मल्टीप्लाई होगी। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अगर एम्पलीट्यूड को हम डबल करते हैं तो एम्पलीट्यूड एक जगह से डबल नहीं होगा, एम्पलीट्यूड अपर और लोअर दोनों डायरेक्शन में क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसीलिए लाउडनेस जो है इंक्रीज हो जाती है कितनी बारी, 4 बार। अगर मैं यूं कहूं कि यहाँ पर मैं इसको 4 टाइम्स इंक्रीज कर देती हूँ तो 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 16 होगा। तो लाउडनेस का आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आपके 16 आ जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट कॉल्ड अ डेसिबल। जो लाउडनेस होती है उसकी यूनिट क्या होगी बेटा, उसको हम डेसिबल पे शो करते हैं और शॉर्ट में उसको डीबी लिखते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। तो जो लाउडनेस है उसको हम जिस जिस सोर्स से आए हैं, जो भी शोर होता है उनको कुछ डेसिबल्स में हम डिवाइड करते हैं। जैसे
कि नॉर्मल ब्रीथिंग जो हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेने की जो आवाज होती है वो कितने डेसिबल की होती है बेटा? 10 डेसिबल की होती है। ठीक है, ये फिक्स है, आपको इसको एज ए टेबल लर्न करना है। सॉफ्ट विस्पर एकदम धीमे से अपन जो बोलते हैं कि भाई 5 मीटर या इतना सुनाई दे, तो उसको अपन बोलते हैं 30 डेसिबल। नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ या आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो अपन करते हैं 60 डेसिबल में बात। ठीक है, जो बहुत बिजी ट्रैफिक होता है वहां पे बहुत ज्यादा नॉइज होता है, कहीं ट्रक की आवाज आ रही है, कहीं टैक्सी की आवाज आ रही है, कोई पर्सन चिल्ला रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो उस ट्रैफिक में जो साउंड होती है वो कितनी होती है बेटा? 70 डेसिबल होती है। और जो फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज के अंदर तो मशीन्स कितना काम करती है, मशीन्स की आवाज आती है, कुछ दूसरी चीजों की वहां पर आवाज आ रही होती है, तो वहां पर जो लाउडनेस होती है वो 80 डेसिबल होती है। ठीक है, अबाउ 80 डेसिबल द नॉइज बिकम फिजिकल पेनफुल। अगर 80 डेसिबल से ऊपर आवाज होती है तो वो हमें क्या करती है? पेनफुल लगती है, तो हमें शोर लगने लग जाता है, हमारा सर दर्द होने लग जाएगा, हमें वो आवाज सहन ही नहीं होगी। ठीक है, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। जो लाउडनेस है साउंड की वो किस पे ऊपर डिपेंड करती है बेटा? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है कि लाउडनेस कितनी होगी। अगर एम्पलीट्यूड क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा? लाउड एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो उसका मीनिंग क्या हुआ? सपोज करते हैं कि ये हमारी नॉर्मल रे है। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, ठीक है ना, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो शोर कैसा होगा? लाउड होगा। अगर एम्पलीट्यूड इसके कंपैरिजन में कम होता है तो जो भी साउंड उससे आएगी वो कैसी आएगी? सॉफ्ट साउंड आएगी। तो इसको अपन दो साउंड बोलते हैं, सॉफ्ट साउंड एंड लाउड साउंड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड अगर स्मॉल होगा तो सॉफ्ट साउंड या फीबल साउंड, सॉफ्ट साउंड का एक अदर वर्ड अपन फीबल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल सॉफ्ट साउंड जो आती है वो किस वजह से आती है? कि एम्पलीट्यूड क्या है? कम है। लाउड साउंड जो आती है उसका मतलब क्या हो गया? एम्पलीट्यूड क्या है? ज्यादा है। समझ में आ रहा है? जब हल्का सा स्ट्राइक किया तो एम्पली वाइब्रेशंस कम ही बनेंगे, स्मॉल बनेंगे, तो एम्पलीट्यूड क्या हुआ? कम हुआ, इसीलिए वाइब्रेशंस का जो कम हुआ तो उस वजह से हमें साउंड जो है सॉफ्ट सुनाई दी, फीबल सुनाई दी। और अगर हम जोर से हार्ड तरीके से या बहुत तेजी से स्ट्राइक करते हैं तो वाइब्रेशन इतना ऊपर नीचे करते हैं, यानी एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। दैट मीन्स साउंड क्या होती है? लाउड नॉइज आती है। तो आपको समझ में आ रहा है? आप चिल्ला रहे हैं तो मतलब एम्पलीट्यूड कैसा हो रहा है? बड़ा बन रहा है ना, लार्जर हो रहा है कंपैरिजन टू इसके। ठीक है ना, तो जब लार्जर एम्पलीट्यूड होगा तो लाउड साउंड निकलेगा, स्मॉलर एम्पलीट्यूड होगा तो सॉफ्ट साउंड निकलेगा। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए अब। ठीक है, तो लार्जर एम्पलीट्यूड मीन्स लाउड साउंड, स्मॉलर एम्पलीट्यूड मीन्स सॉफ्ट साउंड या फीबल साउंड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विद दैट ऑफ एन एडल्ट। अब साउंड की जो बात करते हैं, एक बेबी का साउंड है और एक एडल्ट पर्सन का साउंड है, इज देयर एनी डिफरेंस? दोनों के साउंड में कोई डिफरेंस है? अब देखो, लाउड मीन्स हो गया कि भाई तेज आवाज है ना, अब तेज तो एडल्ट भी चिल्ला सकता है और चिल्ड्रन भी चिल्ला सकता है, लेकिन फिर भी उनकी साउंड में क्या होता है? डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो इवन इफ टू साउंड आर इक्वली लाउड, अगर हम मानते हैं कि दो जने हैं इक्वली लाउड, इक्वली डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे डिफर इन सम वे, फिर भी क्या वो कुछ डिफरेंस होगा? लेट अस सी हाउ। आई वंडर माय वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट माय टीचर। अब आपकी जो वॉइस है वो मेरी वॉइस से बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द श्रिलनेस ऑफ पिच ऑफ अ साउंड। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी श्रिलनेस यानी तीखापन, पतलापन, जो भारीपन आवाज में होता है, उन सबको डिसाइड करती है कौन? फ्रीक्वेंसी। हमने सबसे फर्स्ट लाइन क्या रीड की थी? कि किसी की भी चीज की जो साउंड होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो हमें क्लियर हो गया कि साउंड को कैसे अफेक्ट करता है। अगर लार्जर एम्पलीट्यूड होगा दैट मीन्स लाउड साउंड, स्मॉलर एम्पलीट्यूड होगा दैट मीन्स क्या हो गया? सॉफ्ट साउंड। अब फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंड करती है? देखिए, फ्रीक्वेंसी के लिए इस फ्रीक्वेंसी कोई पिच बोला है, श्रिलनेस यानी पिच, कौन से पिच से आवाज आ रही है वो चीज है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, पिच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच यू कैन डिस्टिंग्विश अ श्रिल साउंड फ्रॉम अ ग्रेव
sound even though the two sound have the same loudness. हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सेम लाउडनेस पे हमें एक बहुत तीखी आवाज लग सकती है, एक बहुत ही ग्रेव या मोटी आवाज लग सकती है, भारी आवाज लग सकती है। अब बात आती है कि ग्रेव या फ्लैट साउंड हमें कब होगी? The pitch of the sound produced by an object vibrating with a low frequency is low and the sound is called a grave or flat. अब देखिए लो फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी अपन किसको बोल रहे थे? आपको ध्यान है अपन ने फ्रीक्वेंसी किसको बोला था? हमने फ्रीक्वेंसी बोला था कि एक सेकंड के अंदर ये जो वेवलेंथ है ना, ये जो रेज है वो कितनी हो जाएंगी। तो एक में तो क्या होता है, सपोज करें कि यहाँ ड्रम की आवाज है, ये कितनी हो गई 1 2 एंड 3, और नीचे सीटी की जो आवाज है, विस्टल की जो आवाज है वो कितनी है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप मुझे बताएं कि इनमें से श्रिल साउंड किसकी होती है? विस्टल की होती है। और ड्रम की आवाज क्या होती है? थोड़ी सी ग्रेव, थोड़ी मोटी आती है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी किसके अंदर ज्यादा है, श्रिलनेस किसके अंदर ज्यादा है। इसमें अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है इन 1 सेकेंड, ठीक है ना, 1 सेकेंड के अंदर फ्रीक्वेंसी के नंबर्स इंक्रीज होते हैं तो वो आवाज तीखी होती है। और अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है दैट मीन्स आवाज क्या हो रही है? थोड़ी ग्रेव, भारी हो रही है। ठीक है, तो इस डायग्राम से आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब ग्रेव साउंड के लिए क्या वर्ड है बेटा? द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग विद अ लो फ्रीक्वेंसी। ये वो पिच हो जाती है जहां पर स्ट्राइक करेंगे, वाइब्रेशन होगा, लेकिन वाइब्रेशन तो होगा लेकिन क्या होगी? फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है, लो फ्रीक्वेंसी है। तो उसके कारण क्या होगा? लाउडनेस, सॉरी, वो जो आवाज है वो थोड़ी ग्रेव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर श्रिल साउंड होगा तो श्रिल साउंड के अंदर क्या बात हो गई? द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस, इसकी जो पिच है साउंड प्रोड्यूस करे, हमने इसके अंदर एयर ब्लो की, वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो गया पिच पे। साउंड प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करने लग गया? वाइब्रेट होना स्टार्ट हुआ विद अ हाई फ्रीक्वेंसी। किससे? हाई फ्रीक्वेंसी से। एंड द साउंड इज कॉल्ड अ श्रिल साउंड। इससे जो फिर साउंड प्रोड्यूस होता है वो कौन सा साउंड है बेटा? श्रिल साउंड है। आई थिंक इट्स क्लियर। चलिए थोड़ा रीड करते हैं तब और क्लियर होगा। द फ्रीक्वेंसी और डिटरमाइन द श्रिलनेस ऑफ पिच ऑफ अ साउंड। जो फ्रीक्वेंसी है या डिटरमाइन करते हैं श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर, अगर फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा है, तो वी से दैट द साउंड इज श्रिल, वो आवाज क्या है? तीखी है। एंड हैज अ हायर पिच, और क्या है? हाई पिच पे। इफ द फ्रीक्वेंसी इज वाइब्रेशन इज लोअर, अगर वाइब्रेशन कम होते हैं, लोअर होते हैं, तब जो होता है हायर पिच। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर वी से दैट द साउंड इज लोअर पिच। अगर वाइब्रेशन कम होते हैं, फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो हम कहते हैं साउंड जो है लोअर पिच पे है। फॉर एग्जांपल, अ ड्रम वाइब्रेट विद अ लो फ्रीक्वेंसी। जो ड्रम है वो वाइब्रेट कर रहा है कैसे? लो फ्रीक्वेंसी पे। देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस a low pitch sound, तो इसीलिए ये प्रोड्यूस करता है लो पिच साउंड। ऑन द अदर हैंड a whistle has a high frequency, जो whistle होती है वो क्या होती है? हाई फ्रीक्वेंसी में होती है। therefore produce a sound of higher pitch, जो हाई पिच पे साउंड प्रोड्यूस करती है। ये बर्ड मेक अ हाई पिच साउंड, बर्ड की जो साउंड होती है वो भी हाई पिच साउंड होती है। ठीक है, a bird make a high pitched sound whereas a lion make a low pitched roar। अब बर्ड जो है हाई पिच साउंड करती है, लेकिन लॉयन जो होता है लो पिच साउंड प्रोड्यूस करता है। हाउएवर द रोर ऑफ लॉयन इज वेरी लाउड। आपने से लॉयन की जो दहाड़ होती है वो लाउड तो बहुत होती है, लेकिन मोटी होती है, ग्रेव होती है, तीखी नहीं होती है। ठीक है, while the sound of bird is quite feeble, और जो बर्ड की साउंड है तीखी होती है लेकिन फीबल यानी सॉफ्ट होती है। ठीक है, एवरी डे यू हियर द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट। अब देखिए आप दिन में बहुत सारे चिल्ड्रंस की, एडल्ट्स की आवाज सुनते हैं, तो उसमें डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइसेस? उनकी वॉइस में कुछ डिफरेंस है? कैन यू से द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड हायर देन द एडल्ट? किसकी ज्यादा होगी? फ्रीक्वेंसी चाइल्ड की ज्यादा होगी कंपैरिजन टू एडल्ट। इसी वजह से जो चिल्ड्रन की जो साउंड होती है वो थोड़ी स्टिलनेस उसमें प्रेजेंट होती है कंपैरिजन टू एडल्ट। एंड सेम इसी तरीके से यूजुअली ऑफ अ वुमन हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ अ मैन। और मैन और वुमेन के साउंड के अंदर भी यही फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है कि वुमेन की साउंड कैसी होती है? फीबल होती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण स्टिलनेस ज्यादा होती है।
और मैन के अंदर क्या होता है कि साउंड थोड़ी सी लाउड भी होती है और फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण ग्रेव यानी कि थोड़ी भारी आवाज होती है। तो आपके इस में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लॉयन और बर्ड की जो साउंड है उसमें ये ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, तो कुछ भी आपके हॉर्स क्वेश्चन के तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ये 2 पॉइंट को कंसीडर करके आपको अपने आंसर्स देने हैं। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड this topic is a loudness and pitch. Next topic we take in next class.